We have with us Divya, and she has cleared the Bihar judiciary. And to our information, interesting fact is that her classes are still going on. Classes की अभी भी चल रही है. She joined us in 2022, 25th September, no? In the offline batch. तो ये offline की है. जैसे अनुपम था ना ऑफलाइन में, ये भी ऑफलाइन की है. तो कौन सा बैच है? मॉर्निंग इवनिंग? मॉर्निंग, यही वाला बैच है. एंड इसका कोर्स अभी चल ही रहा. तो क्लास कर रही है कि छोड़ दिया? अभी अभी छूटा हुआ है. चलो तो आओ बैठो तुम. तो दिव्या, अपना जर्नी बताइए. आप कहाँ से पढ़ी हैं और कब आपने एलएलबी पूरा किया, और फिर राहुल कब ज्वाइन किया वो तो बता ही दिया. और कैसे तुमने सोचा कि तुम तैयारी करोगी, और फिर कैसे तैयारी किया, और इतनी जल्दी एग्ज़ाम निकाल कैसे लिया? Hello everyone. I have completed my BA LLB from National Law University Ranchi in the year 2022. So I had the plan of clearing judiciary in my mind. With this plan only I had joined BA LLB. But what happened in the 4th year my father passed away, and it was also his dream then. So in the 5th year I got a placement in S&A Law Offices Gurgaon. So I went there and did my job for 3 months. But in the 3rd month, they called me and there was a layoff. And 12 employees were called. And we were told that your work is not at par with the expectation. So many students started crying. But to that I told them, okay ma'am, thank you so much. Life has its way, because I always wanted judiciary. And I got my chance then. So my sister told me to get enrolled in Rahul's, and my salary was good, so I got 2,10,000 from my salary. At that time I was having, and since I was in probation, so they got me some extra money also. So I joined Rahul's, I paid the fee, and I joined Rahul's. So जब join किया तो ये tension था, क्योंकि I was using the money which my father had saved me for my marriage. Because we are 5 sisters and 1 brother. So after his death, only my 2 sisters were married. So what my brother-in-law did, he segregated all the money for all the remaining 3 of us and my brother, so that it will be utilized in our studies and marriage. So it was a huge burden on me at that time. I was feeling burdensome because my expenses were getting high, because I was not getting paid from the job. तो मैंने पढ़ाई अच्छे से ही की, पर हाँ नॉर्मली भी ऐसा कोई बहुत स्ट्रेस नहीं लिया. और प्री क्वालिफाई हुआ, उसके बाद मेंस एंड इंटरव्यू, एंड हियर आई हैव माय रिजल्ट. बट आई वाज आल्सो प्रिपेयर टू गिव इट अ सेकंड चांस इफ दिस डज नॉट वर्क. बट बाय गॉड्स ग्रेस ही हैज सेव्ड मी फ्रॉम ऑल द ट्रॉमा, एंड बाय सर्स help, and with the help of this institute only I am able to achieve this huge success. And मेरे सक्सेस में कृष्णा सर का भी हाथ रहा है, आनंद सर का भी रहा है, एंड राहुल सर का तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर इंस्टीट्यूट के लिए. एंड आई वुड अप्रिशिएट निधि मैम. मेरा इंटरव्यू आधा तो कॉन्ट्रैक्ट पे चला. देन वन ऑफ द जजेस आस्क्ड मी कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट. सो आई स्टार्टेड स्माइलिंग एंड आई सेड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आई वॉज ओनली कॉन्फिडेंट इन कॉन्ट्रैक्ट. So he smiled back, and matlab the panel was making us feel very comfortable, and they were very friendly. क्योंकि मेरे इंटरव्यू के बीच में तो मतलब हम लोग मुस्कुरा भी दिए थे. फिर जब लास्ट में जब हम उठे तो सर बोले तुम्हारा इंटरव्यू हो गया. देन आई सेड कि सर हैव अ नाइस डे. तो मैं जैसे ही टर्न हुई, देन समवन सेड गॉड ब्लेस यू. तो इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी. तो वो मेरा टेक अवे था उस दिन से. एंड देन आई गॉट माई रिजल्ट. दिस इज ऑल. तो क्या क्या सब्जेक्ट था तुम्हारा बिहार में? सर मेरा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ था, और टीपीए था, ट्रस्ट एंड इक्विटी, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट. टीपीए, ट्रस्ट, इक्विटी, और एक और कौन सा सब्जेक्ट है? एसआरए. उसके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उस पे भी क्वेश्चन आए थे. और कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट था. फैमिली लॉ नहीं रखा था? फैमिली लॉ था, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ. यस. और जो प्रोसीजरल तो कंपलसरी है? यस सर. और तीनों प्रोसीजरल लॉज तो कंपलसरी है उसमें. और बिहार में इंटरेस्टिंगली आईपीसी नहीं है. Yes, sir. I was same. That is, I don't know why, but they are not changing the syllabus. IPC is not there in Bihar.
एंड और सीआरपीसी में भी बहुत कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कम आते हैं। एंड मेरा सीपीसी एंड एविडेंस कंप्लीट था बहुत अच्छे से। तो सीआरपीसी में नॉलेज ज़्यादा तो नहीं थी, बट इतना था, बेसिक क्वेश्चन आया था व्हाट इज कंप्लेंट रिटन में, तो वो तो लिख ही सकते थे। और सीआरपीसी उस समय तक यहाँ पे नहीं हुआ था तुम्हारा? नहीं, उस समय नहीं हुआ था। एविडेंस कर लिया था तुमने? एविडेंस एंड सीपीसी जब आपने जो 60 क्लासेस थी, जो हमें टाइम मिला था, 120 क्लासेस थी जब स्टार्टिंग में हमने ज्वाइन किया था, तो हमें 2 मंथ्स का टाइम मिला था। तो उस समय मैंने सीपीसी कर लिया था, मैंने एविडेंस कर लिया था, पर मैं सीआरपीसी नहीं कर पाई थी साथ साथ में। सीआरपीसी अब करना है? हाँ, सीआरपीसी अब करना है सर। अभी तो टाइम लगेगा उसमें। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखा तुमने? कॉन्स्टिट्यूशन सर नहीं रखा, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि उसमें एवरेज मार्किंग करता है, इसलिए। अच्छा, नहीं आते हैं मतलब कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं बिहार में। कल शाम को भी एक स्टूडेंट आए थे, ऋषभ रंजन, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन था। सर मैंने नहीं रखा। हाँ, तुमने यू हैव टू मेक चॉइसेस, नो? फैमिली लॉ वाला रख सकते हो बिहार में, कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हो, या फिर टीपीए ट्रस्ट ईजमेंट और एसआरए वाला पेपर रख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट वाला पेपर रख सकते हो। तो यू हैव गॉट, इनमें से शायद मेरे ख्याल 3 चुनना होता है तुमको। जैसे 3 चुनना होता है, 3 ऑप्शनल होता है। तो पढ़ाई का सोर्स क्या था तुम्हारा? सर मेरा बेसिक नोट्स ही था। मेरा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ सर इतना अच्छा गया था पेपर, क्योंकि प्रोसीड्यूरल लॉ में मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी। क्योंकि हुआ क्या कि पहला मेंस था और फर्स्ट एग्जाम था, तो मैंने एक 7.5 नंबर के सवाल मैंने 5 पेजेस में लिख दिए पहले क्वेश्चन में। एंड फिर मेरे पास पेज बचे नहीं, एंड तब तक आधा घंटा खत्म हो चुका था, एंड 2.5 घंटे थे मेरे पास। बट बिहार में एक अच्छा चीज़ है कि ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस, कि आप 7 में से 6 का आंसर दें। तो फिर हम सोचे कि क्वेश्चंस तो कम नहीं होंगे ना, सब में 4-4 पेज लिख देते हैं अच्छे से। तो उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन पेपर कंप्लीट किया। जितने क्वेश्चंस बचे थे बस कंप्लीट किए जल्दी से। और फिर जब दूसरा दिन हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ था, तो मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस तो सर हम सुबह नोट्स रिवाइज करके गए थे। तो ऐसा था कि जैसे ऐसा लगा कि नोट्स से ही सारे सवाल हैं, हिजानत, कस्टडी, एवरीथिंग यही सब आया था वहाँ। तो मेरा हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ का पेपर में तो मैंने थोड़ा पिक्टोरियल भी बना दिया, तो शायद उसी के कारण मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया। क्योंकि प्रोसीड्यूरल लॉ के पेपर के बाद तो आई स्टार्टेड क्राइंग विद, एंड माय मदर वाज देयर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक हेल की। तो प्रोसीजरल में क्या मतलब कुछ छूटा तो नहीं था? छूटा नहीं था, बस 7.5 नंबर का एक छूट गया था, देखे नहीं थे, क्योंकि बहुत जल्दी, क्योंकि 2.5 घंटे में 6 क्वेश्चन करना, और वो भी उतना सारा अच्छे से परफेक्शन के साथ प्रॉब्लम। तो 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया था? क्वेश्चन नहीं छूटा था सर, वो क्वेश्चन का टेल था। 15 के क्वेश्चन आते हैं सर। अच्छा, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे थे कि 17.5 का एक क्वेश्चन है, और उसी में लास्ट क्वेश्चन जो था, छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ था, अच्छा, वो इग्नोर हो गया था। तो वो तो कुछ दिन बाद हम रियलाइज किए कि वो छूट गया, अदरवाइज तो हमको पता था कि पेपर हम कंप्लीट कर लिया। वो भी हुआ मेरे साथ। तो फिर हम मेंस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्लियर हो जाएगा, बाकी सब अच्छा दिए थे, क्योंकि इस बार बिहार में क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड था। अब वैसा थ्योरेटिकल नहीं होता है, टीपीए में सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड थे। एंड उसमें जो होता है, पहले फैक्ट्स लिखे, फिर इश्यूज बनाए, फिर एनालाइज किए, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखे। बिल्कुल मेरा आंसर देने का तरीका यही था। एंड तो वो मेरा हेल्प किया। एंड कॉन्ट्रैक्ट में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था सर इस बार, वेजरिंग अग्रीमेंट से एंड ऑल। एंड क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे उसमें, मतलब अच्छे, जिसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा होगा वो अच्छे से लिख पाएगा। ठीक है। और बिहार में वो जो जीएस का पेपर होता है और साइंस वाला, उसको कैसे किया तुमने? सर वो आनंद सर ने बुक बताया था मुझे, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। तो सर मैं ना वो 2-3 बार पढ़ गई थी। एग्जैक्टली मैंने वही किया। और जो नोट्स होता है, जो यहाँ के क्लासेस है, तो जो क्लास मैंने कर लिया था हिस्ट्री का ज्वाइनिंग करते के साथ ही, तो उसके नोट्स मैंने 2-3 बार रिवाइज कर लिए। मेरा बहुत अच्छा गया था जीके। मतलब प्रीलिम्स में आई वाज कंफर्म कि मेरा हो रहा है। तो जीके के लिए बस यही करना है। और जब मेंस आता है, तो मेंस के पार्ट के लिए यहाँ के जो नोट्स होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस मैच करते हैं हिस्ट्री के, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़े थे। एंड उससे क्वेश्चंस मैच होती हैं। वो बहुत छोटी सी बुक है, उसको देख के लगता नहीं है कि इससे क्वेश्चंस मैच होते होंगे, पर उसमें बस मेमोरी का गेम है, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि इस वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था एंड ऑल। तो वो थोड़ा सा याद करना पड़ता है नेम्स। बिहार, आई कैन से कि प्रिपरेशन मुझे पता चल गया था क्वेश्चन के ट्रेंड से कि क्वेश्चन कैसे आएंगे।
वो होते हैं कि वहाँ पे स्लिप ऑफ माइंड होने से कुछ भूल सकते हैं, बट हाँ सिलेबस पता चल गया था कि हाउ इज़ इट ऑल कवर्ड एंड क्या क्या बुक्स पढ़ना है। ठीक है, तो तुमने जीके उसका बता दिया। Yes, लॉ में तो तुमने नोट्स ही पढ़े थे सारे, सर नोट्स हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के तो नोट्स ही पढ़े थे, मोर और देन केस इनफ। केस लॉज भी पढ़े थे। सर केस लॉज जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारा पढ़ने का तरीका वही है, वो हमें ना पीडीएफ्स बना के देते हाँ, थे, नेशनल लॉ स्कूल में हार्ड तो कॉपी देते थे। हम्म, तो वो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम इंटरव्यू के टाइम लाइव लॉ बहुत फॉलो किए थे एंड इट हेल्प्ड ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने मुझसे कंटेम्प्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो जो लाइव लॉ के जो आर्टिकल सेक्शंस होते हैं, एनालिसिस सेक्शंस होता है, उसमें जो रीसेंट केस लॉज और उसके एनालिसिस दिए होते हैं, जजेस ज़्यादा वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि मेरा तो था इंटरव्यू, बाकी जो बच्चे जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं ग्रुप्स में, तो उसमें देख के यही समझ आया था। तो लाइव लॉ इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंटरव्यू पर्पसेस, क्योंकि ये सब तो बेसिक थ्योरेटिकल भी हो जाता है कहीं कहीं, तो उसके लिए लाइव लॉ फॉलो किया था अच्छे से। क्लास के साथ तुम्हारा टाइमिंग कितना होता था पढ़ाई का? सर हम स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल पढ़ते थे, सबसे पहले तो क्लासेस कंप्लीट करते थे। तो क्योंकि सीपीसी भी था, एविडेंस भी था, तो मेरा था कि हम एक दिन एक ही सब्जेक्ट का लेक्चर करते थे, क्योंकि फिर मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता था। तो जैसे हम एक बार में 4-5 लेक्चर्स कर लेते थे, तो क्लासेस पहले तो 3-4 महीने मेरे क्लासेस कंप्लीट हुए, नोट्स बने सारे। फिर हम सर क्लास आते थे और उसके बाद जाके रिवीजन करते थे। एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे 6 घंटे का। कहाँ रहती थी दिल्ली सर में? हम जीटीवी नगर में रहते थे। अच्छा, तो वहाँ पे मेरे मेरे पीजी के जस्ट बगल में लाइब्रेरी था, तो हम खाना खा के ड्रेस चेंज करके वापस लाइब्रेरी। तो हम 6 घंटे का ही लेते थे, क्योंकि हम 6 घंटे में 6 घंटे बैठ जाते थे, क्योंकि उससे ज़्यादा लेते थे तो पढ़ते ही नहीं थे हम लोग, मतलब बाहर निकल जाते थे। लास्ट में फुल टाइम का कर लिए थे, जब मेंस था मेरा, जब इंटरव्यू था, तो फिर फुल टाइम का था, क्योंकि क्लासेस भी ऑनलाइन करा लिए थे, तो लाइब्रेरी में ही क्लासेस करते थे बैठ के। तो फिर क्लासेस के बाद रिवीजन करते थे, बेयर एक्ट्स देखते थे। सर मेरा काफ़ी इजी वे में ही, मतलब पहले से भी पढ़ा हुआ था, तो लॉ की अंडरस्टैंडिंग थी, और यहाँ आके थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलग लेवल पे होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, और जहाँ मेरा जॉब लगा था तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, क्योंकि वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन था। तो देयर इज़ ओनली आर्बिट्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट इन दैट फील्ड। तो इसलिए यहाँ पे जब मैम पढ़ाई तो काफ़ी अंदर की चीज़ें पता चली। जो सेक्शन 1 टू सेक्शन 23 में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि सेक्शन 8 का तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे। कॉन्ट्रैक्ट का एक वो अलग तरीका था, इनविटेशन टू ऑफर, जो रेलवे टिकट्स का होता है उसको क्या कहते हैं, ऐसे तो काफ़ी इन डेप्थ पढ़ाया जाता है, यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है। तो नोट्स हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही, हम उसमें बहुत ज़्यादा कमांड है, क्योंकि वो हम सबसे अच्छे से किए थे, और वो हम ऑफलाइन क्लासेस में किए थे। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो बेटर इफेक्टिव ज़्यादा है रैदर देन ऑनलाइन। ऑनलाइन में अगर आप उतना डिवोटेड होके कर पा रहे हो तभी करो, अदरवाइज फिर ऑफलाइन इज़ द बेस्ट, क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन के नोट्स हैं वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सर कर रहे हैं। ऑनलाइन अच्छे हैं, बट मेरा बीच में जैसे प्री के बाद मेंस का प्रिपरेशन था, तो उस समय थोड़ा ये होता था कि साथ साथ में करना तो पड़ता अपना था, अपना इसलिए इसने बाद में अपना ऑनलाइन में कन्वर्ट करा लिया। बाद में कराया, ऑफलाइन ही थे पहले मैं। तो अपना अपना परसेप्शन होता है, क्योंकि रिजल्ट तो ऑनलाइन वालों का भी आ रहा है, सर और कुछ काफ़ी बच्चे अच्छा। कंसिस्टेंट होते हैं, कुछ हाँ। बच्चे नहीं होते हैं। तो जैसे मैं थोड़ी इनकंसिस्टेंट हो जाती थी कभी कभी, इसलिए मेरे लिए ऑफलाइन बेटर था, हाँ, और ऑनलाइन फिर ऑफलाइन में भी हर कोई कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कहाँ होता है। हाँ, ऑनलाइन में वही हाल है, ऑफलाइन में भी वही हाल है, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पढ़ेगा, और उसको एग्ज़ाम निकालना है तो वो निकालेगा। नो वन कैन स्टॉप हिम और हर। वही है। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस, जितना जल्दी चाहिए। हाँ, क्योंकि सर जब आप बर्थडे विशेस देते थे तो आप बोलते थे मे यू गेट योर सक्सेस एज सून एज पॉसिबल। तो ये लाइन हम बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि नहीं ऐसा था कि अच्छे रैंक से तो करना है, पर सर क्योंकि हमारा जो कंडीशन था, जो बिहार में सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस हिसाब से आई वांटेड टू बी सिलेक्टेड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ताकि नाउ आई कैन कंट्रोल माई लाइफ अ बिट फ्रॉम द इविल सर्कमस्टांसेस ओनली, नॉट फ्रॉम द गुड थिंग्स। चलो वेरी गुड। अब तो ट्रेनिंग वगैरह का अभी कुछ डेट तो नहीं आया अभी होगा? नहीं आया सर। मेडिकल हो गया तुम लोग का? सर मेडिकल उस समय हुआ था, अभी अच्छा, एक और मेडिकल एक होगा। और होगा अभी। अभी तो क्योंकि सर क्लासेस भी करना है। तुम तो क्लासेस ऑनलाइन में कर लेना। हाँ। क्योंकि
क्योंकि एक बार पहले रिजल्ट आता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग का डेट आता है। नॉर्मली मेडिकल में सब क्वालिफाई कर जाते हैं, अनलेस देयर इज एनी मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, और कुछ कहना है? No, sir. नहीं? Sir, thank you so much for providing this platform. God bless you. God bless you, and we are all very proud of you, and wish you a very happy career Thank of you so judging much, and sir. justicing. God bless you. You अच्छा। guys, I also pray for your success. May it be as soon as possible. Thank you so much. ये आपके लिए। ये थोड़ा भारी है, ध्यान से। ये तुम्हारा चॉकलेट। सर मुझे कैसे फोटो क्लिक करना है, आप ऐसे ठीक। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।